Hello everyone, welcome back to the video. This is Richa here. So now we are going to continue with the features of democracy. As we have already discussed about the cases of various nations and the aspect of democracies that were missing in those countries. Now on that basis, we are going to discuss about the features of democracy. हमने बहुत से केसेस पढ़े अलग अलग देशों के, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिसिंग थी और उन्हीं के बेसिस पे अब हम फीचर्स का फॉर्मेशन करेंगे दैट देयर आर सर्टेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट शुड बी फॉलोड इन एवरी नेशन. So the very first feature is, in a democracy, the final decision making power must rest with those who elected by the people. डेमोक्रेसी में अंतिम डिसीजन लेने का जो पावर होता है वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको जनता चूज़ करती है उनके पास होना चाहिए. सो द अल्टीमेट पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग इज़ इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड पीपल. चुने हुए व्यक्तियों के पास, चुने हुए रूलर्स के पास डिसीजन मेकिंग का अधिकार होता है. नाउ चिल्ड्रन, कैन यू थिंक ऑफ द केस in which country this principle or this features were missing? Now let's have a look to the next feature. A democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. It means लोकतंत्र में जो भी चुनाव हो वो फ्री और फेयर तरीके से होने चाहिए, किसी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस या फ्रॉड का सहारा नहीं लेना चाहिए. Now based on this feature, find out which country was the one which was not having this feature of democracy. Number 3 is, in a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. लोकतंत्र में हर एक वयस्क नागरिक को एक वोट देने का अधिकार होता है और हर एक वोट की एक वैल्यू होती है. The vote and its value should remain and should be applied same on each and every citizen. Now find out the case of that country in which this feature was missing. Number 4 is, a democratic government rules within limits sets by constitutional law and citizens' right. एक लोकतांत्रिक सरकार भी लिमिट में रहकर काम करेगी, उसे भी उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा जो संवैधानिक तौर से उस देश के लिए बनाए गए हैं, विच इज़ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट्स ऑफ दैट नेशन. नेक्स्ट इज, द ऑपोजिशन पार्टीज आर अलाउड टू फंक्शन फ्रीली बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस. एक लोकतांत्रिक देश में, एक लोकतांत्रिक सरकार में जो भी ऑपोजिशन पार्टी होगी, विपक्ष का दल होगा, उसे फ्रीली फंक्शन करने का पूरा अधिकार होगा बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस, चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद में भी. द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. एक लोकतांत्रिक सरकार पॉलिटिकल इक्वालिटी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर आधारित होती है. इट मीन्स कि एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट जो होगी वो पॉलिटिकली भी हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट देगी विदाउट एनी हरेसमेंट, without any disruption and without going into any such kind of trial which is against the law. किसी भी प्रकार की ऐसे ट्रायल को किए बिना जो कानून, संविधान और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है. So children, these are some features of democracy and compare these features with that of the case study of various nation and find out which nation were having which principles और features missing. किस देश में ये principle या features missing थे, ये आपको पता करना है after reading this feature. And now let's have a look at the merits of democracy. What are the benefits or the merits that can be offered by a democratic setup? एक डेमोक्रेसी से, एक लोकतांत्रिक देश से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इस सिस्टम से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, let's have a look on it. A democratic government is better government because it is a more accountable form of government. एक लोकतांत्रिक सरकार सबसे बेहतर सरकार मानी जाती है. This is just because a democratic government is responding to the needs of people.
एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के नीड्स को रिस्पॉन्ड करती है, उसको समझती है, and which is not in case with a non-democratic government. So before explaining this point further, let's have a look at a case of China. There was a famine in China in 1958 to 1961. 1958 से 61 के ड्यूरेशन में चाइना में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था एंड इट वाज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि विश्व के हिस्ट्री का, इतिहास का अब तक का सबसे बुरा फेमाइन रहा. नियरली 3 crore peoples died in this famine. During those days, India's economic condition was not much better than China. लगभग 3 करोड़ लोगों की मौत हुई इसमें, और उस वक्त इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन चाइना से बहुत बेटर नहीं थी. येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमाइन ऑफ द काइंड ऑफ चाइना हैड, बट फिर भी भारत में चाइना जैसा अकाल नहीं पड़ा. इकोनॉमिस्ट थिंक दैट इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द 2 countries. अर्थशास्त्रियों का मानना था कि दोनों देशों की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं ये उसका रिजल्ट था, दैट चाइना वॉज बैडली अफेक्टेड विद अ फेमाइन एंड अ कंट्री लाइक इंडिया विच वॉज नॉट सो इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस वॉज नॉट अफेक्टेड. द एग्जिस्टेंस of democracy in India made the Indian government respond to the food scarcity in such a way that the Chinese government did not. इंडिया में जो डेमोक्रेटिक सेटअप था उसने भारत की सरकार को फूड स्कैसिटी को कंसीडर करने पर बाध्य कर दिया और उस पर डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया. बट इन दैट ऑफ चाइना वहाँ की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक सेटअप की नहीं थी, इसलिए उन्होंने फूड स्कैसिटी, फूड शॉर्टेज पर ध्यान ही नहीं दिया. They point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. So, if China too had multi-party elections, an opposition party and a press free to criticize government, then so many people may not have died in famine. इट मीन्स कि अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी सिस्टम रहा होता, वहाँ पे भी बहुत सी पार्टीज़ वर्क कर रही होती, एक्टिव रहती, एक ओपोजिशन पार्टी होती, विपक्ष का दल जो लगातार गवर्नमेंट के वर्क पे एक मॉनिटरिंग करता रहता है, कॉन्टिन्यूस चेक बना कर रखता है, एंड ऑल दीज सेटअप हेल्प्स अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू वर्क बेटर. ये सारे सेटअप एक लोकतांत्रिक सरकार को और अच्छे से काम करने में सपोर्ट करते हैं, and that was not in China. So my dear students, by this example you might have understood that why democracy is considered to be the best form of government. Because democracy is the responding government who responds to the needs of the people. एक लोकतांत्रिक सरकार एक जिम्मेदार सरकार होती है जो लोगों के ज़रूरतों को समझती है और उनको पूरी करने की कोशिश करती है. While on the other hand, a non-democratic government may and can respond to the people's need, but it all depends on the wishes of the people who rule. एक ऐसी गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक नहीं है, उसके रूलर के विश पर डिपेंड होता है कि वो जनता के नीड्स को देखना, कंसीडर करना और उनको फुलफ़िल करना चाहता है या नहीं. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विश एंड डिज़ायर ऑफ द रूलर ऑफ अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड दे डिड नॉट कंसिडर इट एज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल्स नीड को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती, वो उनके विश पर है, वेदर दे वांट टू कंसीडर इट एंड टू फुलफिल इट और नॉट. वो उसको फुलफिल करना चाहते हैं या नहीं, ये उस रूलर के विश पर डिपेंड हो जाता है. अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल. दिस इज़ द नीड एंड वांट ऑफ डेमोक्रेसी. एक लोकतांत्रिक सरकार हमेशा ये चाहती है कि उसका जो शासक हो, जो रूलर हो, वो लोगों की नीड्स को समझे, उसको रिस्पॉन्ड करे एंड फुलफिल करे. So by this point we can clearly say that a democratic government is a better government. It is just because it is more accountable form of government. सबसे ज़्यादा जिम्मेदार सरकार होती है एक लोकतांत्रिक सरकार. So this is one of the merit of democracy. Now let's move to the next point. It says democracy improves the quality of decision making. Decision making की जो quality है उसको इम्प्रूव करने का काम डेमोक्रेसी करती है. येस,
This is another reason why democracy should lead to better decision than any non-democratic government. ये एक और रीज़न है कि हम डेमोक्रेसी के मेरिट्स को अंडरस्टूड कर सकते हैं. इट इज़ ऑल बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन. डेमोक्रेसी में कंसल्टेशन और डिस्कशन को प्रायोरिटी दी जाती है. ऑल पीपल्स आर अलाउड टू सिट टुगेदर एंड टू हैव डिस्कशन. दे कैन गिव देयर ओपिनियंस, दे कैन गिव देयर एडवाइसेज एंड सो ऑन. सो this is why we can say that it is based on consultation and discussion. A democratic decision always involves many persons, discussions and meetings. हमेशा जब कभी भी एक लोकतांत्रिक सरकार में डिसीजन लिया जाता है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप का जो डिसीजन होता है, that decisions are the result of a long period of discussions and meetings. वो डिसीज़न एक लंबे वक्त से चले आ रहे डिस्कशंस और मीटिंग्स का रिजल्ट होता है. When a number of people put their head together, they are able to point out possible mistakes in any decision, which means अगर एक साथ बैठकर बहुत से लोग एक मुद्दे पर जब विचार करेंगे तो वो बेस्ट आइडियाज़ और बेस्ट सजेशंस दे सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम दे कैन फाइंड आउट द मिस्टेक्स. वो उन मिस्टेक्स को खोज सकते हैं जो कहीं ना कहीं हिडन रह जाती है. सो वी कैन से दैट येस, discussions and meetings takes time. It will take so much of time, but there is a big advantage in taking time over important decisions. It means कि if you are taking time to come to the conclusion and the decision is important, then taking time is not a bad idea. अगर आप किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिसीज़न लेना चाह रहे हैं तो अगर उसमें समय भी लगे तो कोई बुराई नहीं है, as this would reduce the chances of rash or irresponsible decisions. So it would be better to take time than to take a decision which is not in favor of a nation and the peoples as well. Thus we can conclude that democracy improves the quality of decision making. Yes, it helps the rulers to take decisions which are good, which would be favorable for the people, and that will lead to the development of the nation as well. Now let's move to the third merit, which is saying democracy provides a method to deal with differences and conflicts. For a country like India, which is having diversity in terms of language, religion, cultures, ethical values, and so many other things. So we can say that we are having amazing social diversity. We are having diversity on the grounds of race, religion, caste, culture, ethical values, and so many other things. And if a society is having diversity, then in such society people are bound to have differences of opinions and interest. किसी भी समाज में अगर विविधताएं पाई जाती हैं तो वहाँ के लोगों के ओपिनियंस और इंटरेस्ट भी डिफरेंट होंगे, एक दूसरे से मेल खाएं. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. So we can say that it is quite obvious to have a chances of conflicts and differences in the opinions and interest of the people living in a society of a diversified nation, because people belong to different regions, speak different languages, they practice different religions and have different caste. So ultimately we can say that a society which is having diversity would give different aspects of living as well as opinions of thought and so on. So people like this look at the world very differently and have different preferences. एक ऐसा समाज जहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज से लोग आते हैं, जिनकी भाषाएं अलग हैं, धर्म अलग है, जाति अलग है, उनके ओपिनियंस भी अलग होंगे क्योंकि उनको वर्ल्ड को देखने का जो नज़रिया होता है दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट, एंड दे आर हैविंग देयर ओन प्रेफरेंसेस टूवर्ड्स एनीथिंग. So the preference of one group can clash with those of other groups. This is very obvious that one group might have a conflict or a clash with another group if they are not having a common opinion or thought on certain topics. So the question arises that how do we resolve such a conflict? इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, कैसे सुलझाया जा सकता है? It can be resolved by the brutal power.
ब्रूटल पावर्स का इस्तेमाल करके भी इनको रिजॉल्व किया जा सकता है, विच मीन्स कि विच एवर ग्रुप इज़ मोर पावरफुल will dictate its term and others will have to accept that. This is brutal power. इन ग्रुप्स में से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, ताकतवर और शक्तिशाली होगा, वो अपने से कम शक्तिशाली ग्रुप को डिक्टेट करेगा, उसको दबा देगा और अपने थॉट्स और ओपिनियंस को ही एक्सेप्ट करने के लिए लोगों को फोर्स करेगा. बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस. इसके वजह से असंतोष और दुख भर जाएगा. Means people would not get satisfied by this process of decision making. So for that reason, different groups may not be able to live together for a long in such a way. इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स, अलग समुदाय के जो लोग हैं वो एक साथ लंबे वक्त तक नहीं रह पाएंगे. But democracy is there which provides the only peaceful solution to this problem. ये लोकतंत्र ही है जो इस प्रॉब्लम का शांतिपूर्वक सल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है. एज इन अ डेमोक्रेसी नो वन इज़ परमानेंट विनर एंड नो वन इज़ अ परमानेंट लूज़र. एक लोकतंत्र में ना तो कोई परमानेंट विनर होता है और ना ही परमानेंट लूज़र होता है. दिस कंडीशन चेंजेस फ्रिक्वेंटली विद द पासेस ऑफ टाइम. डेमोक्रेसी इज़ a kind of system which gives equal chances and opportunities to each and every people to arise, to awake and to work for the betterment. Different groups can live with one another peacefully. In a diverse country like India, democracy keeps our country together. Yes, my dear student, it is all because of democracy in India which made it possible to keep unity in diversity. ये लोकतंत्र है भारत का, जिसके वजह से इतनी विविधताएं और अंतर होने के बावजूद लोग आपस में शांतिपूर्वक, पीसफुली, हैप्पीनेस के साथ एंड अलॉन्ग विद द फुल सेटिस्फैक्शन दे आर लिविंग टुगेदर. एक साथ आपस में खुशी और संतोष के साथ लोग यहाँ पर रह रहे हैं. सो दीज वर द 3 effects ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ. अब तक जो हमने 3 पॉइंट पढ़ा, ये डेमोक्रेसी के वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं जो गवर्नमेंट की क्वालिटी पर पड़ते हैं और हमारे सोशल लाइफ पर पड़ते हैं. बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी के फेवर में अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट कोई हमें लेना होगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये सरकार के लिए क्या करती है. इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीज़न. That would be the true merit of democracy. Even if democracy does not bring about better decisions and accountable government, it is still better than other forms of government. Sometimes it happens, कई बार ऐसा होता है कि डेमोक्रेसी में भी बहुत अच्छे डिसीजंस नहीं आ पाते या फिर गवर्नमेंट हर चीज़ को लेकर अकाउंटेबल नहीं हो पाती. बट स्टिल देयर आर सम फैक्ट्स. अभी भी कुछ ऐसे पहलू हैं कि जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन कंपैरिजन टू द अदर वन. इट इज़ बिकॉज डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स. येस, डिग्निटी विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ पर्सनस लाइफ. किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी डिग्निटी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है. इफ़ यू गेट dignity and self-respect in the society, that will brings you equality. वो आपको equality provide करेगा and equality will help you to enhance your skills, your development, your knowledge. That will ultimately help you to leads towards a better living. As we have discussed above, that democracy is based on the principle of political equality. It is based on recognizing that the poorest and the least educated has the same status as that of the rich and the educated. Understood? Which means डेमोक्रेसी जो है वो राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर बेस्ड है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो अमीर हो या गरीब हो वो समान रहेगा. उसके साथ साथ एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन भी इक्वल ट्रीटमेंट का हकदार होगा. एंड along with that, the most important thing is that people are not subjects of a ruler, they are the rulers themselves. जो लोग होंगे, जो सिटीजन्स होंगे, वो शासक के सिटीजन्स या उनके सब्जेक्ट्स नहीं होंगे. इवन दे वुड बी द रूलर्स देमसेल्फ. वो खुद शासक हैं जिन्होंने उनको बैठाया है.
even when they make mistakes they are responsible for their conduct. और इस केस में भी अगर वो मिस्टेक करते हैं तो वो अपने कंडक्ट के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे. And finally, the last argument in the favor of democracy is it is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistakes. As we saw above, there is no guarantee that mistakes cannot be made in democracy. Yes, we human beings are full of imperfection, which means we cannot take guarantee that nobody would make any mistake in democracy. लोकतंत्र में किसी भी तरह की गलतियां ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स और मिस्टेक करना हमारी शायद आदत में है, ये बहुत कॉमन है. नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट. किसी भी प्रकार की सरकार हो, वेदर मोनार्की और डिक्टेटरशिप, ओलिगार्ची और एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी ये गारंटी नहीं ले सकता कि वो मिस्टेक्स नहीं कंडक्ट करेंगे. द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज़ दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग, विच इज़ द थिंग विच मेक्स डेमोक्रेसी स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यही वो पॉइंट है जो डेमोक्रेसी को बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से अलग खड़ा करता है, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स हिडन नहीं रह जाती, वो छिपी नहीं रह जाती. There is a space for public discussion on these mistakes and there is a room for correction as well. हर चीज़ का प्रावधान किया गया है इन मिस्टेक्स को हाईलाइट करने का, इन पे डिस्कशन करने का और इनको करेक्ट करने का भी पूरा प्रावधान लोकतंत्र में मिलता है. Either the rulers have to change their decisions or the rulers can be changed. Simple as that. इसका मतलब ये है कि अगर रूलर्स अपने डिसीजंस नहीं चेंज करते हैं तो उनको ही चेंज कर दिया जाएगा. दिस कैन नॉट बी हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. दिस इज जस्ट कैन बी परफॉर्म्ड इन अ सेटअप लाइक डेमोक्रेसी. सो वी कैन सम अप ऑल दीज पॉइंट्स इन अ way that democracy cannot give us everything and is not the solution to all the problems, right? डेमोक्रेसी हमें सब कुछ नहीं दे सकता और न ही ये हर प्रॉब्लम्स का अल्टीमेट सल्यूशन है, बट इट इज़ क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो. यस राइट, कि आप जो भी अल्टरनेटिव जान रहे हो, वेदर मोनार्की, ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कंपैरिजन में डेमोक्रेसी ही सबसे बेटर है, बिकॉज इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ अ गुड डिसीजन. अच्छे डिसीजंस के चांसेस ये प्रोवाइड करता है. इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेज़ एंड अलाउज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. ये लोगों के विशेज़ को रिस्पेक्ट करता है, उसको कंसिडर करता है, और इतना ही नहीं, ये हर तरह के लोगों को एक साथ बांधे रखता है. Even when it fails to do some of these things, it allows a way of correcting its mistakes and offers more dignity to all citizens. अगर कहीं से भी कुछ कमी रह जाए या इन चीज़ों को पूरी तरीके से डेमोक्रेसी फुलफिल ना भी कर पाए, तो भी ये एक रूम ऑफ करेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको करेक्ट करने का पूरा स्टेज देता है आपको, जिससे आप अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकें और हर सिटीजन्स को फुल डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफर की जा सके. सो दैट इज़ वाई वी कैन कंसिडर डेमोक्रेसी एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसलिए हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि इन कंपैरिजन टू द रेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट वी नो, डेमोक्रेसी सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये हमें गुड डिसीजंस देते हैं, ये हमें लोगों को रिस्पेक्ट करने के इक्वल चांस देते हैं, लोगों की विश और नीड्स को कंसिडर किया जाता है, एज वेल एज हर तरह के लोग हु आर फ्रॉम डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड वो एक साथ रह सकते हैं. और अगर कहीं कोई फेलर आ भी जाता है, देन देयर इज़ अ रूम फॉर करेक्शन करने के प्रॉपर चांस, प्रॉपर मौके मिलते हैं. एंड फॉर ऑल दीज ग्राउंड्स वी कैन से दैट नथिंग कैन रिप्लेस डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो we'll have a discussion on the arguments against democracy, or we can say that demerits of democracy. Along with that, we'll have a discussion or a comparative study of democratic nation and a non-democratic nation. Till then, thank you so much everyone. Bye. Take care.